تاریخ ہے 3 ستمبر 1260۔ ایک وادی ہے جس کا نام ہے عین جالوت، جہاں دو فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ ایک فوج نے کبھی جنگ نہیں ہاری، دوسری فوج جانتی ہے کہ وہ مرنے والی ہے۔ 60 سالوں سے منگول جنگی مشین نے ہر دشمن کو رونق دیا ہے۔ انہوں نے پورے شہر زمین سے مٹا دیے، لاکھوں لوگوں کو مار ڈالا اور انسانی کھوپڑیوں سے احرام بنائے۔ چین سے لے کر مشرقی یورپ تک کوئی فوج انہیں روک نہیں سکی، کبھی نہیں۔ لیکن آج کچھ مختلف ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو دنیا کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ منگولوں کی قیادت ایک جنرل کرتی ہے جس کا نام کی تبوکا ہے۔ وہ ایک عیسائی جنگجو ہے جس نے اپنی زندگی عظیم خان کی خدمت میں گزاری ہے۔ اس کی فوج نے ابھی حال ہی میں دمشق، حلب اور زیادہ تر مشرق وسطی فتح کر لیا ہے۔ وہ ایسی کامیابیوں کے بعد آئے ہیں جو ناممکن لگتی تھیں۔ اب کچھ بھی انہیں روک نہیں سکتا۔ ان کے سامنے مصر کے مملوک کھڑے ہیں۔ یہ عام سپاہی نہیں ہے، یہ غلام جنگجو ہیں، وہ مرد جو بچپن میں اپنے خاندانوں سے چھین لیے گئے اور مارنا سکھایا گیا۔ ان کے قائد کا نام قدس ہے۔ صرف 3 سال پہلے وہ کوئی خاص نہیں تھا، قاہرہ کا ایک معمولی افسر تھا۔ اب وہ مصر کا سلطان ہے اور اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے والا ہے۔ منگولوں نے اسے ایک خط بھیجا ہے۔ خط سیدھا اور خوفناک ہے۔ ابھی ہتھیار ڈال دو ورنہ ہم قاہرہ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسا ہم نے بغداد کے ساتھ کیا تھا۔ جو کچھ بغداد کے ساتھ ہوا وہ یہ تھا کہ اسے وجود سے مٹا دیا گیا۔ 1 ہفتے میں 1 ملین لوگ مارے گئے، دریا خون سے سرخ ہو گئے کئی دنوں تک۔ لیکن قدس وہ کرتا ہے جس کی کسی نے توقع نہیں کی۔ وہ تمام منگول رسولوں کو قتل کر دیتا ہے، پھر ان کے سر قاہرہ کے دروازوں پر لگا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جنگ، مکمل جنگ، اور منگول کبھی ہارے نہیں۔ 1260 میں منگول سلطنت انسانیت کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ یہ کوریا سے پولینڈ تک پھیلی ہوئی تھی، 13 ملین مربع میل، زمین کی 1/5 حصہ، اور یہ اب بھی بڑھ رہی تھی۔ ان کا راز صرف ظلم نہیں بلکہ رفتار بھی ہے۔ منگول گھوڑے روزانہ 50 میل سفر کر سکتے ہیں۔ ان کے سوار پورے زور سے دوڑتے ہوئے تیر چلا سکتے ہیں۔ وہ چلتے پھرتے 100 گز دوڑ سے سکے جتنا نشانہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے جو انہیں ناقابل شکست بناتی ہے، وہ ہے خوف۔ جب منگول فوجیں کسی شہر کے قریب پہنچتی ہیں تو وہ ایک انتخاب پیش کرتے ہیں: فوراً ہتھیار ڈال دو اور غلام بن کر زندگی گزارو، مزاحمت کرو اور اپنی جانوں کو وحشتناک موت کے مناظر دیکھو۔ زیادہ تر شہر ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ 1258 میں منگولوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ یہ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہاں ایگین حکمت تھا، جہاں علماء نے قدیم یونان اور روم کا علم محفوظ رکھا، جہاں الجبرا ایجاد ہوا اور جہاں پہلے اسپتال بنے۔ منگولوں نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ انہوں نے کتابیں دریا میں پھینک دیں، یہاں تک کہ پانی سیاہ ہو گیا۔ سیاہی سے اتنے لوگ مار دیے گئے کہ گواہوں کا کہنا تھا کہ شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلتے ہوئے تم زمین کو چھو بھی نہیں سکتے، کیونکہ تمہارے قدم لاشوں پر پڑیں گے۔ یہی کچھ قاہرہ کا مقدر ہے۔ اگر کاتوس ہار گیا، لیکن مملوک عام دشمن نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک خفیہ ہتھیار ہے جس سے حتیٰ کہ منگول بھی ڈرتے ہیں۔ ہر مملوک جنگجو کبھی غلام لڑکا ہوتا تھا، عام طور پر ترکی یا وسطی ایشیا سے۔ انہیں بازاروں میں مویشیوں کی طرح خریدا جاتا تھا، اپنی فیملی سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جاتا تھا، اور بچپن سے ہی ایک مقصد کے لیے تربیت دی جاتی تھی۔ وہ مقصد تھا جنگ۔ وہ تلواروں، نیزوں، تیر کمان اور گدروہے سے لڑنا سیکھ چکے تھے۔ وہ حربی حکمت عملی، زبانیں اور قرآن پاک کا مطالعہ کرتے تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے وفاداری سیکھی، نہ کہ خاندان یا قبیلے کے لیے بلکہ ایک دوسرے اور اسلام کے لیے۔ جب وہ اپنی آزادی حاصل کر چکے تھے تو وہ لڑکے نہیں رہے جو کبھی چرائے گئے تھے۔ وہ زندہ ہتھیار بن چکے تھے اور وہ بھائی تھے۔ بابر ان بھائیوں میں سے ایک ہے۔ وہ قدس کا سب سے بڑا جنرل ہے اور اس کے پاس ایک ایسا منصوبہ ہے جو مصر کو بچا سکتا ہے۔ یہ خطرناک ہے۔
पहले कभी आजमाया नहीं गया, और अगर ये नाकाम हुआ तो इस्लामी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मुगल तकरीबन 20,000 फौज के साथ फलस्तीन के जुनूब की तरफ आ रहे। वो पुरएतमाद हैं क्योंकि कभी हारे नहीं। वो तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि हमेशा ऐसा ही लड़ते हैं। दुश्मन के तैयार होने से पहले हमला कर देते हैं। लेकिन बाबरस उनका मुशाहिदा कर रहा है, उनके तरीके समझ रहा है, और उसने एक अहम बात नोट की है। मुगल हमेशा एक ही तरीका अपनाते हैं। पहले एक छोटा दस्ता भेजते हैं जासूसी के लिए, फिर अपनी मरकजी फौज के साथ हमला करते हैं। यह हर बार काम करता है क्योंकि दुश्मन घबरा कर गलतियां करते हैं। इस बार बात कुछ और होगी। इस बार ममलूक खुद मंगोलों की हिकमत अमली उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तुस इस मंसूबे से मुत्तफिक है, मगर वो एक तब्दीली करता है जो सब कुछ बदल देगी। वो काहिरा में महफूज रहने के बजाय फौज की क़ियादत खुद करने का फैसला करता है। इसके मुशीर उसे पागल समझते हैं। सुल्तान जंगों में हिस्सा नहीं लेते। वो दौर से अहकामात देते हैं और जनरल्स को खतरा मोल लेने देते हैं। लेकिन कूस कुछ ऐसा जानता है जो वो नहीं जानते। इसके सिपाहियों को उसे लड़ते देखना जरूरी है। उन्हें यकीन दिलाना है कि वो उनके साथ मरने को तैयार है, क्योंकि जो वो करने वाले हैं वो पहले कभी कामयाब नहीं हुआ। 3 सितंबर 1260, वादी एन जालूत। सुबह सवेरे हैं और सहरा अभी ठंडा है। मंगोल जासूस सबसे पहले पहुंचते हैं, जैसा कि बाबर ने पेश गोई की थी। तकरीबन 1000 घड़सवार तेजी से दौड़ रहे हैं। वो ममलूक की एक छोटी सी टोली को देखते हैं जो उनका इंतजार कर रही है। शायद 500 लोग। आसान शिकार। मंगोल फौरन हमला कर देते हैं। उनके तीर आसमान को सिया कर देते हैं। उनके घोड़े रेत पर गरज रहे हैं। ममलूक घबरा जाते हैं। वो मुड़कर भाग जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मंगोलों को जो तवक्को होती है। हर दुश्मन पहले भाग जाता है, फिर मरकजी मंगोली फौज आती है और काम मुकम्मल कर देती है। ये हजारों बार हो चुका है। लेकिन कुछ गलत है। ममलूक खौफ के मारे नहीं भाग रहे। वो आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल सफ में पीछे हिट रहे हैं। वो तीर चला रहे हैं, मंगोलों और सवारों को निशाना बना रहे हैं और मंगोलों को वादी के अंदर ले जा रहे हैं। कितबोगा मरकजी मुगवली फौज के साथ पहुंचता है जब उसके जासूस एक मोड़ के पीछे गायब हो जाते हैं। वो सुन सकता है आगे लड़ाई है, लेकिन वो नहीं देख पा रहा। वादी की दीवारें बहुत ऊंची हैं, रास्ता बहुत तंग है। इसे शक करना चाहिए था। इसे मजीद जासूस भेजने चाहिए थे। इसे इंतजार करना चाहिए था। लेकिन वो एक मंगोल जनरल है और मंगोल जनरल्स इंतजार नहीं करते, वो हमला करते हैं। ये 70 सालों से काम कर रहा है। आज क्यों मुख्तलिफ होगा? मंगोल फौज वादी में पानी की तरह बह रही है। दुनिया के 20,000 बेहतरीन जंगजू एक और आसान फतह के लिए बेताब। वो फतह की खुशबू महसूस कर सकते हैं, जैसे मजा भी चख सकते हों जो सूना वो काहिरा से लेकर जा रहे थे। तभी उन्होंने सरों की आवाजें सुने। आवाज हर तरफ से आ रही थी, वादी के दोनों तरफ पहाड़ियों से, उनके पीछे से, आगे से। ये कोई एक सूरन नहीं बल्कि सैकड़ों थे। फिर वो उन्हें देखे। ममलूक जंगजू रेत से निकलने वाले भूतों की तरह छुपे हुए मकामात से नमूदार हो रहे थे। हजारों की तादाद में, शायद 30,000 चारों तरफ। 60 साल में पहली बार एक मंगोल फौज फंस गई थी। लेकिन मंगोल फिर भी मंगोल थे। वो घबराए नहीं, वो हार नहीं मानते। वो सफ बांध कर लड़ने की तैयारी करते हैं ताकि रास्ता बनाकर निकल जाए। उनकी तादाद पहले भी कम रही है। उन्हें पहले भी हैरान किया गया है, मगर वो कभी हारे नहीं। कि तबुका अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जुनूब की तरफ निकले। ये खिले मैदान तक सबसे छोटा रास्ता है। अगर वो सहरा तक पहुंच गए तो अपनी रफ्तार और तीर अंदाजी से जंग का रुख बदल सकते हैं। मंगोल हमला आवर होते हैं।
उनके तीर हदफ को लगते हैं, उनके घोड़े ममलूकों की सफों में टकराते हैं। एक लम्हे के लिए लगता है कि वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन फिर क़द्स ऐसा काम करता है जो सब कुछ बदल देता है। वो अपना हेलमेट उतार देता है, इसे जमीन पर फेंक देता है और पूरी आवाज से चीखता है, ए इस्लाम। हर ममलूक सिपाही उसे सुनता है। वो देखते हैं कि उनका सुल्तान, उनका रहनुमा एक आम सिपाही की तरह लड़ रहा है, उनकी तरह खून बहा रहा है, उनकी तरह सब कुछ खतरे में डाल रहा है। उसका असर बिजली की तरह होता है। ममलूकी फौज एक ऐसी शिद्दत से आगे बढ़ती है जो मंगोलों ने कभी नहीं देखी। ये डरे हुए किसान नर्म दिल शहरी नहीं हैं, ये पेशावर कातिल हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी लम्हे के लिए तरबियत ली है। लड़ाई एक ज़िबहा बन गई, लेकिन दहाइयों में पहली बार खून रीजी करने वाले मंगोल नहीं थे। कीदी शेर की तरह लड़ा। इसकी तलवार ने दर्जन भर ममलूक जंगजुओं को काट डाला जब तक कि वो आखिरकार ज़ेर ना आ गया। अपनी आखिरी सांस में वो अपने दुश्मनों को ललकार कर चला। वो जिस तरह जिंदगी गुजारता था वही डर के बगैर मरा। जब 3 सितंबर 1260 को सूरज गुरूब हुआ, तकरीबन पूरी मंगोल फौज तबाह हो चुकी थी। चंद सौ बच निकले के किस्सा सुनाई, बाकी सहरा के गधों के लिए शिकार बन गए। लेकिन असल फतह सिर्फ फौजी नहीं थी बल्कि ज़हनी थी। 60 साल तक मंगोल नाकाबिल शिकस्त लगते थे। आसमान ने चना, देवताओं ने बख्शा। आज वो अफसाना फलस्तीन की रेत में दफन हो गया है। फतह की खबर आग की तरह फैल गई है। काहिरा से बगदाद और दमिश्क तक वो लोग जो दहाइयों से खौफ में जीते थे, अचानक दोबारा उम्मीद करने लगे हैं। मंगोलों को हराया जा सकता है, फतह की लहर को रोका जा सकता है। मंगोलिया के दौर मशरिक में अजीम खान मोनिक्के को महीनों बाद यह खबर मिलती है। सल्तनत के आगाज के बाद पहली बार मंगोल फौज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। मगरिबी तौसी फौरन रुक जाती है। वो वसाइल जो अफ्रीका और यूरोप को फतह करने में इस्तेमाल होते, वो दूसरी सरहदों पर तवज्जो दी गई। ममलूकों ने इस मौका को समझदारी से इस्तेमाल किया। अगले चंद सालों में उन्होंने फिलिस्तीन और शाम में वो तमाम शहर वापस ले लिए जो मंगोलों ने फतह किए थे। बाबेरस नए सुल्तान बन गए जब काताविज अपने ही अफसरान के हाथों कत्ल हो गए। ये एक याद दहानी थी कि वस्ती दौर की सियासत हमेशा जानलेवा होती थी, चाहे वो इत्तेहादी ही क्यों ना हो। लेकिन बाबेरस ने मंगोलों और सलीबी रियासतों के खिलाफ मुहिम जारी रखी। 1300 तक मंगोल सल्तनत टूट फूट का शिकार हो रही थी। वो मुत्तहिदा जंगी मशीन जो कभी दुनिया फतह करने की धमकी देती थी, अब मुख्तलिफ बादशाहतों में बट गई थी और वो आपस में लड़ने लगे। ममलूक मिस्र और शाम पर अगले 250 साल तक हुक्मरानी करते। वो फनून, साइंस और तमीरात के सरपरस्त बन जाते हैं। काहिरा दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक बन जाता है। इस्लामी कुतुब खानों में महफूज इल्म सदियों बाद यूरोपी निशत सानिया की बुनियाद बनता है। अगर कातास ने इस सितंबर की सुबह मुख्तलिफ फैसला किया होता तो ये सब कुछ न होता। अगर वो काहिरा में रहता, अगर उसने मुशीरों की बात सुनी होती जो उसे मुज़ाकरात का मशवरा दे रहे थे, अगर वो एक आम हुक्मरान होता बजाय एक जंगजू के, तो एन जालूत ने सिर्फ मिस्र को नहीं बचाया होता बल्कि इस ख्याल को भी बचाया कि कोई भी, किसी भी सल्तनत, चाहे वो कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, उन लोगों से नहीं बच पाती जो अपने घरों और अकायद के लिए लड़ने को तैयार हो। मंगोलों ने भी ये सबक कभी नहीं भूला। बाद के सदियों में जब वो ऐसे ही हिकमत अमली इस्तेमाल करने वाले दुश्मनों से सामना हुए तो वो ज्यादा मोहतात हो गए। आसान फतूहात का जमाना खत्म हो चुका था। आज एन जालूत की जंग का मैदान वेस्ट बैंक की एक खामोश वादी है। वहां कोई यादगार नहीं है जो वहां होने वाले वाक़ये को याद रुके, ना वहां कोई सियाहती निशानियां हैं जो उसकी अहमियत बताएं। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि वो इस जगह खड़े हैं जहां दुनिया की तारीख का रुख बदल गया था। लेकिन 3 सितंबर को 1260 बिल्कुल जहां वो खड़े थे, कुछ साबित गुलाम लड़कों ने साबित कर दिया कि तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत भी जख्मी हो सकती है। और कभी कभी दुनिया बदलने के लिए बस इतना ही काफी होता है।